All right, so we need to continue this modeling, and we will follow what has been given in this table in your lab manual, and we will put all the blocks one by one. So ideal torque source is done. Next is the mechanical rotational reference. So I am in the library browser, but I think you are not able to see it. But you will see when I drag it down to the canvas. So mechanical and mechanical rotational elements. I need a mechanical rotational reference. So next is the gearbox, which is in the mechanical mechanisms. Here we go, the gearbox. Then we need to go to the drive line. In the drive line, we select tires and vehicles, and we select a simple tire. After that, we need to have a mass. So mechanical and translational elements. We get mass. Next is the ideal translational motion sensor. So we need to go to the mechanical sensors. So in the sensors, we can see there are four sensors available: force sensor, rotational sensor, torque sensor, and the next we need is the translational motion sensor. Okay, after the translational motion sensor, we need a mechanical translational reference. And finally, we need a PS constant. So we go to the physical signals, not in the mechanical, we go to the physical signal library. Then we go to sources and we select a constant source. Uh, the ideal force source and translational friction will be required in task number 2. Now we try to assemble these. So first of all, we have a motor. Now see, the new blocks that I have just put here do not show any names. So I can select all these, right? And I can go to format and set name on. So now, even if I select another element or if I click anywhere uh, on the canvas, it will not hide the name. Now all the names are here, so it will be easy for me to pick and connect the appropriate block. So we start with the ideal torque sensor, right?
And in ideal torque sensor, we connect a rotational reference element. So it will be connected here. Connections are very easy, just like the Simulink. We connect it and it just creates a path. The ideal torque sensor now goes to the gearbox. We select, put it here, the gearbox, and then gearbox will go to the wheel here. After that, we have chassis, the mass. We connect it like this, and then this output of the mass will be connected to the speed sensor. So speed sensor is the ideal translational motion sensor. So it will sense what the speed is. And this output, this speed block will give you two output. One is the position and one is the velocity. We are now interested in the velocity. So we will connect V port with the PS Simulink converter so that we can see what the velocity is on the scope block. सर ये लास्ट पॉइंट रिपीट कीजिएगा। कौन सा वाला? सर जो ये अभी ये स्पीडोमीटर वाला जो आपने अभी बताया, कौन सी पोर्ट कहाँ पे कनेक्ट होगी? हाँ, देखें, जो हमारे पास आइडियल ट्रांसलेशनल मोशन सेंसर है, उसकी जो आउटपुट पोर्ट्स हैं वो दो हैं। अगेन इसके अंदर अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी, या फिर अगर आपको क्विक रेफरेंस चाहिए तो आप डबल क्लिक करके भी इसके जो पैरामीटर्स हैं उसकी थोड़ी सी आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में आप जाएंगे मैटलैब की, या हेल्प मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस ब्लॉक की एग्जांपल्स और हर चीज़ मिलेगी। तो उसमें ये हमारे पास जो आउटपुट ये ब्लॉक दे रहा है वो वेलोसिटी और पोजीशन का दे रहा है। इसका नाम वी है, ये क्योंकि इसके अंदर एक काइंड ऑफ अ रजिस्टर सिंबल बना हुआ है, इसलिए हमें वो वी नज़र नहीं आ रहा सही से, लेकिन वो वी वी पोर्ट है। और दूसरी जो पोर्ट है वो पी की पोर्ट है। पी विल गिव यू द पोजीशन, वेयर एज द वी पोर्ट विल गिव यू द वेलोसिटी। So we are interested in the velocity. That's why we connect the velocity to this PS Simulink signal converter. ये क्या करेगा कि अब ये सिमुलिंक सिम स्केप एनवायरनमेंट से सिमुलिंक में कन्वर्ट करेगा उस सिग्नल को, और सिमुलिंक का जो ब्लॉक है स्कोप जो सिमुलिंक में होता है, तो सिमुलिंक पे वो इसको शो करवाएगा जो भी आउटपुट आ रहा होगा। तो दैट्स व्हाई वी यूज कन्वर्टर, और ये हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है। सिमुलिंक टू पीएस कन्वर्टर की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। जो डिफॉल्ट लेआउट कैनवास का बनता है तो उसमें ये पड़े हुए होते हैं। ठीक है मुर्तजा, समझ आया आपको? जी सर, समझ आ गया। अब ये जो सिग्नल कॉन्फ़िगरेशन का ब्लॉक है, अच्छा, जो सी है, जो चेसी है, इसके साथ हम ये जो हमने मैकेनिकल ट्रांसलेशनल रेफरेंस दिया है ग्राउंड, इसको कनेक्ट कर देंगे। और इसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ तो अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ तो मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये रहा क्विक रोटेट का, रोटेट हो गया। राइट क्लिक करके भी ऑप्शन है, वहां से भी कर सकता हूँ। थोड़ा सा इसको प्लेस किया मैंने, और फिर बीच में एक आपके पास एक गाइडलाइन थी कि आप उसको क्लिक करें तो कनेक्शन खुद ही बना देगा, उसने बना दिया, जस्ट लाइक वी डू इन सिमुलिंक। ठीक है। पीएस कांस्टेंट का ब्लॉक है तो आप इधर एक कांस्टेंट फोर्स ऐड करेंगे, वो आपने कर दी। अब ये सॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, सॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन का ब्लॉक आप अपनी मर्जी से कहीं भी ऐड कर सकते हैं, और मैं यहाँ यहीं पे ऐड कर देता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट था हमारे सिस्टम में यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, आप इसको कहीं और भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सॉल्व हो जाएगा। अब आपको आउटपुट कहाँ मिलेगा? जिस तरह से आप सिमुलिंक में सॉल्व करते थे तो आपको आउटपुट मिलता था, आउटपुट आपको ग्राफ में मिलता था, उसी तरह से आप इस स्कोप को डबल क्लिक करेंगे और आप यहाँ से रन करेंगे, तो आपको इस पूरे सिस्टम में अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये रन हो जाएगा और ये आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो आपकी जो बाय टाइम आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये ME2 11077 कौन है? किसी को याद है? तो हम LMS पे देख लेते हैं।
मेरे ख्याल से तहा में मुझे सर शायद। ताहा महमूद है मेरे ख्याल में। सर वली की आईडी से कोई पहले फेक पर्सन आया था सर। अब वली कह रहे हैं कि सर ज्वाइन नहीं कर रहे, रिमूव कर रहे हैं बार बार। हाँ ठीक है ठीक है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फ्रेंड्स एक्शन। सर वो खुद है ही नहीं वो सर। ठीक है, आई गॉट हिज मैसेज। ओके ठीक है, सर। तो ये ताहा को बता दें, उनको मैसेज भी कर चुका हूँ कि आप नेम्स मेंशन करें और फिर ज्वाइन करें। ठीक है, कोई बता दे ताहा को, अलग से व्हाट्सएप पे भी बता दे। ओके सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये फिगर कंप्लीट कर ली है। ये एज इट इज़ आपके मैनुअल में भी गिवन है। मैनुअल में जो आपको फिगर गिवन है उसमें कुछ थोड़े से जो नेम्स हैं वो चेंज है, रीनेम हुई हुई है चीज़ें। लेकिन जो आपको टेबल गिवन है उस टेबल में एग्जैक्ट नेम जो मैटलैब का है वो दिया हुआ है, तो उससे आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो हमने जो अभी तक ये बनाया है इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई हो या कोई चीज़ रिपीट करवानी हो। फरियाद, हसन, शारिक, यस सर। ये देखा है आपने जो मैंने जी सर। बनाया अभी कैनवस पे, जो एक फिगर बनाई है, समझ आया आपको? जी सर। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, अभी तो कोई सवाल नहीं। ठीक है, तो इसमें आप जो है वो चीज़ों को रीनेम करके भी सेव कर सकते हैं। अब आपको जब लैब रिपोर्ट जमा करानी होगी तो आप क्या करेंगे कि इसका आपने कैनवास का साफ सुथरा स्क्रीनशॉट लेना है। पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए मुझे, इसमें ये टैब्स नहीं चाहिए, ऊपर नीचे जो नोट्स हैं ये नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं देखना कि आपने नीचे और कौन कौन से टैब्स खोले हुए हैं, ये सब मुझे नहीं देखना। टेम्परेचर क्या है आपकी स्क्रीन का ये मुझे नहीं देखना। आप सिर्फ जो काम की चीज़ है उसका स्क्रीनशॉट लें, उसको सही से फॉर्मेट करें अपने A4 साइज पे, और उसको फिर आप रिपोर्ट में अटैच करें, और साथ ही जो इसका स्कोप पे आउटपुट आ रहा होगा उसको भी आप लोग अटैच करेंगे। स्कोप पे क्या आ रहा है। ठीक है, अब इस स्कोप को अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो देखें ये ब्लैक बैकग्राउंड है। मैंने पहले भी बताया कि ब्लैक बैकग्राउंड को प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके टूल्स में जाके या व्यू में जाके इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। आप इसका वाइट बैकग्राउंड कर लें, और वाइट बैकग्राउंड पे अगर येलो नज़र नहीं आ रहा तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको ब्लू कर लें, रेड कर लें, ताकि आपका जो प्रिंट आउट है ब्लैक एंड वाइट पे वो ठीक आए। ठीक है, ये जब ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकलेगा तो 15 पेजों की एक तो इंक इसमें ज़ाया हो रही होगी, और फिर ये येलो लाइन नज़र भी नहीं आएगी। ठीक है, तो बी वाइज, थोड़ा सा आप इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसको रिपोर्ट में अटैच कर सकते हैं। ये जब ईद के बाद आपकी लैब होगी, लैब नंबर 6, तो आपने ये जमा करवाना होगा। क्लियर है सबको? ओके सर। जौदत ओके। क्लियर आपको? जौदत, दयान? ओके सर। जी सर सही है। ठीक है, मुनीब, मुस्तफ़ा, यस अच्छा सर। सर। यस। तलाल, यस सर, क्लियर है। ठीक है, और शहूद ने भी ज्वाइन किया था। शहूद है हमारे साथ? नहीं। चाहिए, ताहा को मैसेज चला गया? जी सर मैसेज किया है, वो अभी सीन नहीं किया उसने। बस सही है, ये भी बस वेटिंग रूम में रख के बस चले गए हैं भाई साहब। ठीक है, बहरहाल इनको भी हमने एडमिट कर लिया है, 77 वेरीफाई हो गया। तो अगर यहाँ तक सब ठीक है तो हम अपने लैब मैनुअल को देखते हैं और उसमें थोड़ा आगे चलते हैं। दिस इज़ द मैनुअल, और इसमें आपके पास देखें टास्क 2 क्या है। इन टास्क 1 you might have noticed that the speed is directly proportional to time. Now add air drag and friction in your model to make the increase in speed look closer to reality. ठीक है, तो जो बेस मॉडल है वो यही रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आपने कोई चेंजेस नहीं करनी है, बस आपने इसमें चीज़ ऐड करनी होगी, वो ये वाली होगी अपर पोर्शन, जिसमें आपके पास एयर ड्रैग और ये फ्रिक्शन आ रहा है। ठीक है, और इस फ्रिक्शन को भी आपने ग्राउंड करना होगा।
ये इसका एक इस मेथडोलॉजी है। ये आप बाय टाइम सीख जाएंगे कि कहाँ पे आपने ग्राउंडिंग करनी है, किसको किस पोर्ट पे कनेक्ट करना है, सी एस का क्या मतलब है। तो ये बाय टाइम आ जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स मोर देन इनफ कि आप इसको कर लें, और उसके बाद ये जो आपका टास्क नंबर 2 है आप इसको कर लें। तो ये भी हम ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको अगर हम स्कोप पे रन करें तो हमारे पास क्या डिफरेंस आता है। अभी जो हमारे पास आउटपुट आया था, लेट मी शो यू अगेन, दिस वाज दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन, अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर एयर ड्रैग आएगा और फ्रिक्शन फोर्सेस को भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, ये ऑरेंज लाइन आपको नजर आ रही है, कुछ इस तरह से जाना चाहिए। ऑरेंज लाइन नजर आ रही है मुनीब? यस सर। जी सर, आ रही। हाँ, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस। ठीक है, अगर आपके पास आइडियल केस में बिल्कुल वैक्यूम में आप जा रहे हैं और कोई आपके पास सामने से काउंटर फोर्सेस नहीं है, तो फिर ऐसा आपके पास लीनियर ग्राफ आता है, अदरवाइज ग्राफ लीनियर नहीं होता। तो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट इफ वी कंप्लीट टास्क नंबर 2। तो टास्क नंबर 2 में जो चीज़ें हैं उसको हम अटैच करते हैं। मैं दोबारा उसी कैनवास पे आ गया हूँ, और अब मैं वो चीज़ें ड्रैग करूँगा एडिशनल जो मुझे चाहिए फ्रिक्शन के लिए। तो आई विल रेफर बैक टू माई टेबल अगेन, और उस टेबल में मुझे आइडियल फोर्स सोर्स मिल रही है और एक ट्रांसलेशनल फ्रिक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स हम किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, एयर ड्रैग को, और फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, जो रोड फ्रिक्शन है। तो वी नीड टू गो टू द मैकेनिकल सोर्सेज लाइब्रेरी, and then we need to go to the mechanical translational elements to get the translational friction. So let's start again. तो मैं लाइब्रेरी ब्राउज़र अगर खोलूँगा तो वो आपको विजिबल नहीं होगा। तो ये मैंने आइडियल फोर्स सोर्स का एक जो ब्लॉक है वो ड्रैग कर लिया है। अब दोबारा मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, एंड दिस टाइम आई नीड ट्रांसलेशनल एलिमेंट, और उसका नाम होगा ट्रांसलेशनल फ्रिक्शन। ठीक है, ये ट्रांसलेशनल फ्रिक्शन है। और इसके साथ ही मुझे एक और भी मुझे ग्राउंड ग्राउंड चाहिए होगा। सो फॉर दैट ग्राउंड वो भी आपके पास जो है वो मैकेनिकल ट्रांसलेशनल रेफरेंस है। तो मैकेनिकल ट्रांसलेशनल रेफरेंस हम दोबारा ले लेते हैं, और आप चाहें तो सिमुलिंक की तरह उसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर द मैकेनिकल ट्रांसलेशनल we need to go to the again translational elements, और ट्रांसलेशनल रेफरेंस हमने ले लिया। अच्छा, अब इसका कनेक्शन किस तरह से है कि आपको जो फ्रिक्शन है उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है और चेसी के साथ कनेक्ट करना है। और सिमिलरली ये आप देख लें यहाँ पे, दिस इज योर रेफरेंस। सिमिलरली जो आपके एयर ड्रैग की फोर्स है उसको भी आप चेसी के साथ ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वो दोनों चीज़ें आपके चेसी से रिलेटेड हैं, तो दैट्स वाई वी आर कनेक्टिंग हियर। और एक आपको कांस्टेंट फोर्स भी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अभी हमने इसमें कोई जो जैसे हमने क्वार्टर कार मॉडल को किया था मॉडल, तो उसमें हमने एम सी की कस्टमाइज्ड वैल्यूज ली थी, तो हमने यहाँ पे कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं की। हमने चेसी का मास कितना रखना है वगैरह ये सब नहीं किया।
बस हमने इसको डिफॉल्ट पे ही रन किया है. आवर ऑब्जेक्टिव इज टू जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज द डिफरेंस that we can see if we incorporate this drag force and frictional coefficient. ठीक है, तो इसको अटैच करते हैं. गो बैक टू आवर कैनवास. तो अभी हम नेम ऑन कर लेते हैं, शो ब्लॉक नेम. और इसकी जो हम आर पोर्ट है उसको हम चेसी से कनेक्ट करेंगे. ठीक है, और साथ ही जो आपके पास ट्रांसलेशनल फ्रिक्शन की जो आर पोर्ट है उसको आप इसी आर पोर्ट के साथ कनेक्ट करेंगे. ठीक है, बाकी जो रह गई है वो उसकी सी पोर्ट है. उस सी को आप इसके सी के साथ कनेक्ट कर देंगे. जो ड्रैग जो फ्रिक्शनल की जो सी पोर्ट है उसी के साथ कनेक्ट कर देंगे. दिस विल बिकम कॉमन. और यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया इसको. इसको डबल रोटेट कर लिया और इसके साथ मैंने यहाँ लगा दिया. ठीक है, अब मैं इसको इसके स्कोप पे जाता हूँ और आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ स्कोप स्क्रीन. तो देखिए मेरा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह का आ रहा है. तो दैट शोज कि इसमें हमने ड्रैग फोर्स को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है और फ्रिक्शन को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग सिमिलर काइंड ऑफ आउटपुट. अगर आपका इस तरह का आउटपुट नहीं आ रहा तो मे बी आपके कनेक्शन में कोई गलती हो या आपने गलती से कोई दूसरा ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया हो. ये चीज़ हो सकती है. तो सो फार एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क. एहसन है हमारे साथ, एहसन, हसन, फरजान, 77, ME 77 है. तो रहे हैं सारे. शहूद, यस सर। शहूद. ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज बताइए. सर ये ग्राफ भी अटैच करके देना है सर, इसका स्क्रीनशॉट भी। जी अटैच करना है और इसका बैकग्राउंड आप वाइट कर लें. बैकग्राउंड वाइट करके आप अटैच कर सकते हैं इसमें. ओके सर। ठीक है, मैं आपको दोबारा से यहाँ मैनुअल दिखा दूँ. ठीक है, तो दीज आर द टू टास्क दैट यू नीड टू डू. अटैच देयर आउटपुट. और इसकी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन 3 को छोड़ दें. ये जो टेबल है दिस विल गाइड यू टू द राइट ब्लॉक. इट विल गाइड यू टू द राइट रेफरेंस लाइब्रेरी. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बआसानी कर सकते हैं और आप इस फाइल को सेव भी कर सकते हैं. अगेन सिम escape स्टार्ट करने के लिए जो है वो हम कमांड यूज़ करते हैं SSC_new. दैट विल ओपन अ ब्लैंक कैनवास.
और लैब नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 विच वाज द क्वार्टर कार मॉडल, उसको हमने डिस्कस किया था शुरू में, तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस वाले सेशन में भी कितना टाइम बाकी है? अभी तक तो मेरे पास वो अलर्ट आई नहीं है, जी तो सर, हमारे पास वैलेट नहीं है, टाइमर हो। आपके पास भी आ जाता है? ठीक है, तो मैं अटेंडेंस कर लेते हैं अभी दोनों सेक्शंस की। अगर किसी का माइक काम नहीं कर रहा है तो वो चैट बॉक्स में प्रेजेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद सेक्शन ए। उस्मान नहीं है, वली नहीं है, राफे, राफे भी नहीं है, चले गए राफे भाई। सर प्रेजेंट है, मैंने मैसेज किया। ओके ओके, माइक चल रहा है तो वैसे ही बता दें। ठीक है, राफे हो गए प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद हाई नहीं है, मुदस्सिर, तलाल, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। मुनीब। प्रेजेंट सर। अच्छा मुनीब, वैसे आप नहीं जवाब दे रहे थे, प्रेजेंट फौरन बोल दिया आपने। एहसन, प्रेजेंट सर। एहसन भी अभी उठे हैं। लवेश नहीं है, ताहा, मीरानी, बिलाल, प्रेजेंट सर। शऊद, एहसन, शहबाज, प्रेजेंट। जोदत, वलीद, यस सर। वकार। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। वकार हैं, यस सर प्रेजेंट। उजैर, प्रेजेंट सर। उजैफा, उजैफा भी नहीं। ठीक है, सेक्शन ए में कोई डाउट नहीं किसी को। सेव अटेंडेंस। तो लेट्स गो टू सेक्शन बी। दयान, प्रेजेंट सर। हनान नहीं है, रयान, प्रेजेंट सर। मान, मुस्तफ़ा, यस सर। शायान, प्रेजेंट। यान, प्रेजेंट सर। फरियार, हसन, प्रेजेंट सर। शारिक, प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। बिलाल, प्रेजेंट। अ, साद, अबूद, फरजान, नबील, ताहा, उमर। सारे चले गए? प्रेजेंट सर। नहीं सर, ताहा ताहा था ये रहा। ताहा प्रेजेंट, ओके। उमर, नबील, फरजान चले गए। अबूद, सर अभी ये जो अटेंडेंस लगी है सर, ये ए सेक्शन वालों की, बी वालों की, ये वाली? बी। ठीक है सर। तो उमर नहीं है हमारे साथ, नबील भी नहीं है हमारे साथ, फरजान भी नहीं है हमारे साथ, अबूद भी नहीं है। प्रॉब्लम, मतलब ज्वाइन किया हुआ है लेकिन है नहीं। और बिलाल, आप हैं? यस सर। आपने देखा कि आपका नाम सेक्शन ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है? जी सर। हाँ, इसको आप सही करवाएं आईटी से। जी। ठीक है, जो उस्मान का एक्चुअल। भी यही है सर। किसका? उस्मान अकबर। हाँ, उस्मान का भी यही प्रॉब्लम है। तो आप लोग इसको ठीक करवाएं, और जो आपका सेक्शन रहा है हमेशा से, सिर्फ वही चलेगा। मैंने आपको एनरोलमेंट के वक्त भी कहा था कि आप अपने सेक्शन में ही एनरोल करें।
तो वही रखें, और दूसरा जो आपने जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको डिलीट करवाएं। ठीक है। सर सर, मैं प्रेजेंट था। प्रेजेंट थे, कहाँ थे? सर, हाँ, वॉशरूम गया हुआ था। तो ठीक है। उमर भी वॉशरूम में? उमर पता नहीं। ठीक है उमर सर आपकी। मेरी भी प्रेजेंट लगाते हैं सर सर। कौन बोल रहा है? शहूद सर। शहूद आपकी एब्सेंट लगाई है मैंने, सेक्शन बताएं। सेक्शन ए है सर। सेक्शन ए। ठीक है। और कोई रह गया तो अभी बता दें। आप एहतिकाफ में नहीं गए शहूद? जी सर। एहतिकाफ में जा रहे थे ना, आप गए नहीं? सर एहतिकाफ में बैठ के क्लास ले रहा हूँ आपकी। आपको मना भी किया था, आप एहतिकाफ में जाएं, आप जाएं साइन आउट करें। ठीक है, प्रेजेंट लग गई आपकी, आप एहतिकाफ में कंटिन्यू करें। कोई सवाल है आपका? नहीं तो आप कंटिन्यू करें। नहीं नहीं कोई सवाल नहीं है सर, कल क्लियर है। ओके। तो आप जा सकते हैं एहतिकाफ में वापस। और कोई है एहतिकाफ वाला? तो लेट मी शेयर अगेन दिस कैनवास वंस अगेन। ये हमने बनाया था। ठीक है। और इसके साथ वैसे आपके पास यहाँ पे मैनुअल में भी है, मैनुअल शेयर कर देता हूँ डायरेक्टली। ये मैनुअल है, तो आप यहाँ से कंप्लीट गाइड ले सकते हैं। आई होप अभी किसी और को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। जो सबमिट करवाना है उसमें भी आप क्लियर हैं, तो इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट वीक वी विल डू लैब नंबर 6 एंड वी विल ट्राई टू कवर लैब नंबर 7 एज वेल इफ़ वी गेट टाइम। हमारे पास टाइम तो होगा, क्योंकि वो जो रमज़ान में वैसे ही शेड्यूल टफ था, और फिर रेगुलर टाइम स्लॉट्स में हम आ जाएंगे तो इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। सो विल ट्राई टू कवर 6 एंड 7। आप लोग अगर उसको थोड़ा सा रिव्यू करके आ जाएं तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी और का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम सेशन एंड कर दें। जी सर, कोई सवाल नहीं। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस सेशन, और इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक आपके एलएमएस पे आ जाएगा अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके। आप इसकी रिकॉर्डिंग भी बाद में देख सकते हैं। ठीक है, आधे पौने घंटे में इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।